2 سالوں میں 2024 میں 2023 میں 1,30,00,000 سے زیادہ پاسپورٹ بنے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستانی یوتھ جو ہے بہت فرسٹریٹڈ ہے۔ اگر ان کا بس چلے تو سارے کے سارے ہی ایک دفعہ میں نکل جائیں کہ خاندان اجڑ گئے۔ انتظار کرتے ہیں کہ کوئی ٹریجڈی ہو تو پھر خبریں آنی شروع ہو جاتی ہیں، جی فلاں نے کارروائی کا حکم دے دیا، فلاں نے دے دیا۔ سسٹم جو ہے نا بہت خراب ہو چکا ہے پاکستان کا۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو دا پلیٹ فارم آف دی ٹروتھ انٹرنیشنل۔ میں ہوں رابعہ علی۔ کرنٹ افیئرس پہ بہت دنوں سے بات نہیں ہوئی تھی۔ آج ہم بات کریں گے پی ٹی آئی کے کیا حالات چل رہے ہیں، کیونکہ ٹرمپ آنے والا ہے 20 کو، حکومت کا انچارج لینے والے ہیں ٹرمپ۔ کیا حالات ہوں گے اس کے بعد، کیونکہ ان کے میسیجز آ رہے ہیں رچرڈ کرینل کی طرف سے کہ عمران خان کو ریلیز کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے گریس کا جو بوٹ کا حادثہ ہوا ہے اس کے اوپر 37 ایف آئی اے کے امپلائیز کو ڈسمس کیا گیا ہے۔ آخر ان کو پہلے کیوں نہیں ڈسمس کیا گیا؟ ان سب پر میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں جاوید صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، بہت شکریہ آپ نے بلایا۔ بہت عرصے بعد آپ دوبارہ موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ سر ایک تو بتائیے گا، مین ہاٹ ٹاپک ہے عمران خان نواز حکومت پی ٹی آئی، کیا چل رہا ہے ان کے درمیان ڈائلاگس کا؟ کیونکہ اب ایک ٹرمپ کا جو ہے بڑا پریشر ہے حکومت کے اوپر کہ وہ آ جائیں گے گورنمنٹ میں تو مختلف طرح سے چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ ہوں گی۔ آپ کا کیا نظریہ ہے؟ ابھی دیکھیں، یہ آپ کی بات صحیح ہے۔ ٹرمپ کے الیکٹ ہونے کے بعد پی ٹی آئی کو ایک مورل سپورٹ تو فوراً مل گئی۔ رائٹ۔ ٹرمپ کے الیکشن سے پہلے ہم سن رہے تھے کہ جی عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہوگا، اور شاید اس کا جو تجزیے آ رہے تھے کہ شاید اس کا بھٹو جیسا اشر ہوگا۔ رائٹ۔ اب جیسے ہی ٹرمپ کا اس نے کافی سیٹیں لے لیں، جیت گیا دھڑلے کے ساتھ، اس کے بعد یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ایک طرح سے وہ بہت بڑا ریلیف مل گیا۔ رائٹ۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے ہفتے ملٹری کورٹ نے بہت سارے لوگوں کو چھوڑ بھی دیا جن کے ملٹری اس میں کورٹ میں ٹرائل ہو رہے تھے۔ تو اب یہ ان کے مذاکرات چل رہے ہیں آپس میں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ تو اس میں پی ٹی آئی کی ٹیم بھی ہے، گورنمنٹ کی بھی ہے، لیکن دونوں طرف سے گلے شکوے شروع میں ہی آ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ سیریس نہیں ہے، وہ بات ٹھیک ہے۔ سیریس نہیں کرنا چاہ رہے۔ مثلا پی ٹی آئی نے کہا کہ یہ ہمیں عمران خان کو ملنے دے۔ رائٹ۔ اب وہ عمران خان کو 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا، ابھی تک انہوں نے ملوایا نہیں۔ کبھی آج کل کر کے اس کو کر رہے ہیں۔ ڈیلے تو کریں۔ لگتا یہ ہے کہ یہ ٹائم گین کر رہے ہیں کہ یہ ٹرمپ آ جائیں، ہوں اس کے بعد پتہ چلے کہ اس کوئی میں کلیئر میسج آئے یا کوئی کلیئر ڈیمانڈس آئیں تو وہ اس کا ویٹ ہو رہا ہے۔ دیکھیں اس کے میسج تو آ گیا۔ ٹرمپ نے جو اسپیشل انوائے نومینیٹ کیا ہے، رچرڈ گرینل نام ہے، جی۔ 25 دسمبر کو انہوں نے انٹرویو دیا امریکہ کے کسی آرگنائزیشن کو، جس میں انہوں نے کہا ہے پاکستان کو کہ عمران خان کو رہا کرو۔ رائٹ۔ اچھا، اس میں انہوں نے ایک بہت بڑی دلچسپ بات کی ہے۔ وہ کہہ رہے کہ جو چارجز عمران خان پہ لگائے گئے ہیں اسی طرح کے چارجز ٹرمپ پہ بھی لگائے ہیں۔ اوکے۔ تو ٹرمپ اب الیکشن میں جیت گئے ہیں اور وہ چارجر سائڈ پہ چلے گئے ہیں، تو وہ اس طرح سے عمران خان کو جو ہے نا وہ رہا کر دینا چاہیے۔ دوسرا یہ تھا کہ خواجہ آصف نے کل کوئی ٹی وی چینل میں بیان دیا ہے۔ رائٹ۔ وہ یہ دیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ ایسی حکومت کو پاکستان میں سپورٹ کرے گا جو نیوکلیر پروگرام کو سیبوٹاج کرے۔ اوکے۔ اس کے بیان سے ہمیں لگ رہا ہے یہ کہ ان کی ٹرمپ کے ساتھ ابھی تک کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہو سکی، اور یہ فورس ہی کر رہے ہیں کہ اگر ٹرمپ آئے گا تو وہ ان کی حکومت کو کوئی سپورٹ نہیں دے گا، وہ اس کا ٹلٹ پی ٹی آئی کی طرف ہوگا، اور انہوں نے 25 دسمبر کو واضح کر دیا۔ رائٹ۔ یہ تو آنے سے پہلے ہی انہوں نے بیان دے دیا، ان کے جو اسپیشل انوائے ہیں۔ اب جب وہ آئیں گے تو پھر اس کو جیسے ہی کسی کو امبیسیڈر اپوائنٹ کریں گے پاکستان میں، رائٹ۔ تو اس پہ ظاہر ہے ان کا پرائرٹی تو بظاہر دیکھنے میں پی ٹی آئی ہی لگ رہی ہے۔ ٹھیک۔ اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو کہہ رہے تھے نا جی عمران خان این اور وہ مانگ رہا ہے، تو مجھے لگ رہا ہے اب وہ مانگ نہیں رہا، اب وہ یہ لوگ فورس این کر آر رہے او ہیں۔ دینے کی پوزیشن میں آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر اس کو ٹرمپ کی فل سپورٹ ملتی ہے تو پھر اس سے لوگ این آر او مانگیں گے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم سے مانگ رہا ہے۔
राइट, टोन अब पीटीआई की चेंज हो गई है, ये हुँ, एग्रेसिव मोड में चले गए। ओके, पहले की तरह मिन्नतें तरले नहीं कर ले, पहले तो गवर्नमेंट मजाक उड़ाती थी कि वो मजाक रहा था, क्या ज़रूरत है, ये तो हुँ, फलां है, ये तो फलां है, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। राइट, अब जब उनका देखा है ना कि भी ये प्रेशर थोड़ा सा आना शुरू हो गया और ये 20 के बाद प्रेशर ज़्यादा होगा, अगर इन केस ट्रम्प इनके साथ नहीं बनती, इस गवर्नमेंट के साथ, जो कि ज़्यादा चांसेस है नहीं बनेगी, ठीक है, तो फिर इस गवर्नमेंट का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मार्च में आईएमएफ ने अगली किस्त देनी है पाकिस्तान को, राइट, तो वो उसमें अमेरिका की सपोर्ट चाहिए होती है। हुँ, लास्ट टाइम भी जब लिया था तो बाइडन के जो इंतज़ामिया थी उन्होंने सपोर्ट किया था, तो आईएमएफ ने लिया, जबकि उन्होंने अपनी बहुत ही सख्त किस्म की शराइत मनवा के फिर पैसे दिए थे। अगर ये बात नहीं मानेंगे जो मौजूदा हुकूमत है ट्रम्प एडमन की, तो वो सबसे पहले यही काम करेंगे कि आईएमएफ को कहेंगे कि भी आप ब्रेक लगा दो, राइट। जब तक हमारा कोई मामला नहीं। मेरा ये ख़्याल है, ज़ाती ख़्याल है कि हुकूमत शायद फ़ौरन से ना बदले, लेकिन अगर इमरान खान बाहर आ गए तो फिर से जुलूस और दोबारा से इलेक्शन कराने की जो डिमांड है वो स्टार्ट हो जाएगी और वो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर नहीं है। वो पाकिस्तान के हक में बेहतर हो सकती है, लेकिन मसला ये है कि अगर ये दोबारा इलेक्शन कराते हैं, राइट, तो जो तजज़िये आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कि वो इमरान पीटीआई आ खान हो जाएगी। सकता है ट्रम्प से भी ज़्यादा वोट ले जाए, राइट, क्लीन स्वीप करे, चूँकि अब वहाँ पे चूँकि ट्रम्प 20 में तारीख को आ चुका होगा, पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे तो उस वक़्त ना तो कोई 40 फार्म 45 में हेरा फेरी हो सकेगी, ना 47 में। राइट, वो उस तरह नहीं हो सकेगी। अब ये है कि दोबारा इलेक्शन कराने का ये मतलब है कि सीधा-सीधा इमरान खान को दावत देना है हुकूमत का। ओके। तो एक एक ऑप्शन और है, जो ओके, अभी फ्लोट की जा रही है खबरों के ज़रिए, वो ये है कि जी पीपल पार्टी से मिलके इमरान खान अपनी हुकूमत बना सकते हैं। ओके। ये आइडिया फ्लोट किया जा रहा है, जबकि हो सकता है इमरान खान इस पे एग्री ना करे। हाँ, तो जैसे हम अगर उनका रिकॉर्ड देखें तो वो मेरा नहीं ख़्याल कि इस पे एग्री करेंगे। यानी लास्ट टाइम जो उनको हुकूमत दी गई थी बाजवा की तरफ से, पीडीएम बनने से पहले पीटीआई की हुकूमत थी ना, जी, उसमें बहुत सारे लोटे घुसा दिए गए थे, जिससे इमरान खान की रेपुटेशन और बहुत पार्टी ख़राब बहुत हुई थी। बहुत डैमेज हुई थी कि हुँ, अगर लोटों से ही चलाना था तो फिर ये कौन सा आप उसमें सिस्टम नया कौन सी तब्दीली आप लेके आए, कुछ भी नहीं, तो वो इमरान खान के हाथ बांध दिए थे। तो मुझे लग रहा है कि इमरान खान वो दोबारा वो गलती नहीं करेगा कि फिर किसी ऐसी पार्टी से या लीडरों को साथ मिला के चले कि उसका शुरू में 6 महीने में ही उसका जुलूस निकल जाए। आई होप कि ऐसा ही हो और जो भी हो वो हमारे लिए, अवाम के लिए और मुल्क के हक़ में बेहतर हो। दूसरी तरफ सर देखते हैं ये जो ग्रीस का इंसिडेंट हुआ है बोट का, उसके ऊपर आपकी क्या तज्ज़िया है? उसको आप किस तरह इलैबोरेट करेंगे? हाँ, जो यूनान में जो कश्ती का वो अभी रिसेंटली जो हुआ है जी, पिछले महीने। देखिए उसमें इस तरह के इंसिडेंट 4-5 पहले भी हो चुके पहले हैं। भी हो चुके हैं। अब जब हुआ है तो उसमें 45 से ज़ायद पाकिस्तानी की जानें चली गईं, जो बेचारे अपना फ्यूचर बनाने के लिए यूनान के ज़रिए से यूरोप में जाना चाह रहे थे। राइट, तो अब सुना है कि इन्होंने 37 एफआईए के ऑफिशियल्स को सैक कर दिया है। यानी एक केस है ओके, और उसमें इन्वॉल्वमेंट देखें कि 37 लोगों को इन्होंने सैक किया है। ओके, कितना बड़ा नेटवर्क जो है वो ह्यूमन स्मगलिंग पे काम कर रहा था, जिसमें मेजॉरिटी एफआईए के लोग थे। वेरी सैड। और अगर साल 2 साल पहले ये एक्शन लिया होता, आज अभी टिकर चल रहे थे थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म के शहबाज शरीफ के कि जी ये जो हादसा हुआ कश्ती का और पी एफआईए के लोगों के साथ एक्शन हुआ, ये कई सालों से काम कर रहे थे। ये तो सबको पता है यस, कि ऐसे तो ह्यूमन। नहीं हो सकता बगैर किसी इदारे के जी। कंट्रीब्यूशन के इस हाँ, तरह नहीं, की चीज़ें पॉसिबल नहीं है। नहीं हो सकता ना। बाई एयर अगर किसी ने जाना है तो इमिग्रेशन के बगैर नहीं हो सकता, ठीक है? राइट, तो ये एक केस में 37 लोग हैं, तो उससे पहले जो गए होंगे, उसमें कितना बड़ा नेटवर्क है, तो उसमें हुकूमत को ये चाहिए कि अब एफआईए की सफाई अच्छी तरह से सफाई करे। देखें लोग बाहर जाना चाहते हैं, वो कानूनी तरीके से जाएँ और हुकूमत फैसिलिटेट करे। यस, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनको लाख, 1.5 लाख बंदे हर साल चाहिए, लेबर भी और स्किल्ड भी चाहिए। तो
ये लीगली अगर करें, लोगों को भेजें। अभी 2 साल पहले अभी डेटा आया पिछले हफ्ते एफआईए का कि 2 सालों में 2024 में 2023 में 1 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा पासपोर्ट बने हैं। ठीक है। ठीक है, उसमें कुछ वो भी हैं जो रिन्यू हुए, लेकिन बने बहुत ज़्यादा हैं। इसका ये मतलब है कि पाकिस्तानी यूथ जो है बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, हुँ, जो हालात हैं, और अगर इनका बस चले तो सारे के सारे ही एक दफ़ा में निकल जाएँ। राइट। मसला वही है कि लीगली जाना और इलीगली जाना और थोड़ा-सा डिफरेंट। लीगली जाना शायद इतना एक्सपेंसिव है कि लोग अनएक्सपेंसिव तरीका अपनाते नहीं, हैं। इलीगली ज़्यादा महँगा है। अभी जो ओके, ये यूनान में कश्ती का वाक़या हुआ है, उसमें फ़ी कस 20 से 25 लाख रुपया एजेंटों को दिया गया है, ठीक है? इतने तो आपके बैंक स्टेटमेंट में पैसे पड़े हों तो यूरोप यूरोप के किसी भी कंट्री का वीज़ा लग जाता है। 6 महीने से ज़्यादा अगर आपके बैंक बैलेंस में हुँ, 20 लाख से ज़्यादा हो तो इटली भी आपको वीज़ा दे देता है, पुर्तगाल भी दे देता है, और भी यूरोप के कई कंट्री दे देते हैं। राइट, तो लोग पता नहीं इलीगली क्यों जाते हैं, ये समझ नहीं आती कि किस तरह से वो इन लोगों के जाल में आ जाते हैं। और दूसरे जो इंसिडेंट हैं पिछले साल हुए हैं, उसमें देखा जाए तो 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी अपनी बिल्कुल। जानें खो चुके हैं, ये इस चक्कर में कि वो किसी तरीके से गैर कानूनी तरीके से कश्तियों के ज़रिए से वो इटली इटली चले जाएं, यूनान चले जाएं, तो या इसी तरह। तो सर ये जो बोट का वाक़या हुआ है, ये किस तरह होता है? ये हादसा होता कैसे है? अ, ये तो वो हैं जो पता चल जाती हैं, नाकाम होती हैं। जो कामयाब हो जाते हैं वो उनकी तादाद तो सामने कभी आती ही नहीं है। लेकिन ये नाकाम कैसे होते हैं? हादसे होते कैसे हैं? ये वाली जो बोट थी ना जिसमें ये जो डूबी है, राइट, इसमें जो बचे हैं उन लोगों ने बताया था कि इनके पास ना कोई टेक्नोलॉजी थी, ठीक ना है। कोई कम्युनिकेशन सिस्टम था, और बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड कश्ती थी। ओके, मसलन अगर 100 की उसमें कैपेसिटी है तो 300 बंदा बैठाया तो उसने तो डूबना था। राइट, फिर ये था कि कम्युनिकेशन सिस्टम ऐसा नहीं था कि हेल्प के लिए कॉल कर सकते, क्योंकि डूबते डूबते टाइम लगता है ना। ठीक है। तो अगर उसमें कम्युनिकेशन का सिस्टम मौजूद हो तो तकरीबन 2 घंटे के अंदर अंदर हेल्प आ जाती है, और वो उसमें वो बचा लेते हैं जो लोग डूबते हैं। रेस्क्यू कर सकते हैं। तो अब इसमें ये था कि पाकिस्तानी 40 तो एक हफ्ता मिले ही नहीं, उनमें से सिर्फ 4 की बॉडीज मिली। उससे शुरू में पहले दिन 5 की बॉडीज मिली हैं, बाकियों की बॉडीज अभी तक नहीं मिली। ये तो पाकिस्तानी थे, दूसरे जो और मुल्कों के थे उनका कोई पता नहीं। तो उसमें बोट बहुत पुरानी इस्तेमाल करते हैं, राइट, और चलाने वाले इतने एक्सपर्ट नहीं होते, सही, और उनकी प्रायोरिटी बस ये होती है कि भाई किसी तरीके से हमने जो कोई पोर्ट जहाँ एक्सेस है या जहाँ पे उनकी बात हुई हुई है, राइट। वहाँ तक इनको पहुँचा के छोड़ के बस मेन पर्पस जो होता है वो लोगों से पैसा पकड़ना होता है। वो खैरियत से ज़िंदा वहाँ पे पहुँचे ना पहुँचे इसकी वो कोई उनसे क्वेश्चन नहीं कर रहा होता। देखो उसमें पैसे तो उन्होंने एडवांस में लिए होते हैं। राइट, एजेंट पैसे एडवांस में लेता है, आगे सारा सिस्टम वो लाइन अप करता है कि यहाँ से किस कंट्री में जाना है। अभी पिछले हफ्ते ईरान की रिपोर्ट आई थी कि उन्होंने 10,000 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया जो ईरान से यूरोप जाने के लिए आए थे, राइट, और उसमें कोशिशों में लगे हुए थे किसी तरह के किसी यूरोप में, चूँकि ईरान से ट्रेनें जाती हैं, आगे जाके यूरोप की ट्रेन मिल जाती है। तो ये पैसे सारे एडवांस में देने पड़ते हैं। आगे जो लोग होते हैं उनको भी पेमेंट होती है, तो वो होती है ना, मतलब यहाँ से वो, ये तो नहीं हो सकता कि ये जब ये जाएँगे तो उनको पैसे देंगे, ऐसा ओके। नहीं है। पेमेंट सारी पहले हो चुकी होती है। इसीलिए फिर इस तरह के हालात होते हैं। हाँ, तो उनको समझे बंदे बचे या ना बचे, उनको पैसे मिल गए। बिल्कुल, ज़िंदा के भी मिल गए, मुर्दा के भी मिल गए। राइट। अब लोगों के ख़ानदान उजड़ गए, और हमारे यहाँ ये है कि इंतज़ार करते हैं कि कोई ट्रेजेडी हो तो एक्शन लिया जाए फिर कार्रवाई खबरें आनी शुरू हो जाती हैं, जी फलां ने कार्रवाई का हुक्म दे दिया, फलां ने दे और दिया, उस पे फलां फिर ने। एक्सपेक्ट करते हैं कि उस पे एप्रिशिएट किया जाए हाँ, अवाम की तो तरफ से। ये सिस्टम जो है ना, बहुत ख़राब हो चुका है पाकिस्तान का। हुँ, हुँ। अकाउंटेबिलिटी सिस्टम इस वक्त है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। पूरे तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं कि आपको किसी इदारे से कंप्लेंट है, आप कोई हेल्पलाइन ऐसी है ही नहीं जहां आप कॉल करें और फ़ौरन आपका मसला हल आ जाए। ठीक। ऐसा कोई नहीं है। बिल्कुल, ये तो आप सही कह रहे हैं। सर इकोनॉमिकल हालात कहाँ जा रहे हैं पाकिस्तान के?
देखिए, अभी तक सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज छलांगे मार रही थी, वो भी 2-3 दिन से रुक गई हैं। जब से डेट वो करीब आ रही है ना 20 तारीख की, राइट। और ऊपर से जो इनकी मीटिंग्स हो रही हैं उसकी कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। तो वो जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने, जिन्होंने मार्केट रोज़ उठा उठा के छलांगे मार मार के उसको 1,16,000 पॉइंट्स पे इंडेक्स पे पहुंचाया हुआ था, अब वो बीच में से थोड़ा थोड़ा करके निकल रहे हैं। जो कि ट्रम्प आएगा टेंशन और बढ़ेगी। राइट। ठीक है, वो आएगा, उसके बाद क्या होगा, कितना टाइम लगेगा, तो उस दौरान ये जो आज भी स्टॉक मार्केट जो थी वो नेगेटिव क्लोज हुई है, राइट। और कल भी नेगेटिव थी। और अब इसका चूँकि मार्च में आईएमएफ ने पैसे देने हैं, तो अभी तक कोई पॉजिटिव खबर नहीं आ रही उनकी तरफ से। सिर्फ शराइत आ रही हैं कि आपने ये भी वादा पूरा करना है, पहले राइट। ये भी करना है, ये भी करना है। वो वादे पूरे होंगे, फिर भी गारंटी नहीं है कि वो मार्च में वो पैसे देंगे नहीं देंगे, जो कि डिपेंड करता है कि पीछे से क्या ऑर्डर आता है। ओके। तो इस वक्त सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान के लिए मुश्किल ही है। मतलब कुछ बेहतरी नज़र आ रही थी, लेकिन अब फिर से टेंशन शुरू हो गई। फिर से टेंशन ठीक है शुरू। ना, रेमिटेंस थोड़ी सी बढ़ी थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ी थी, और स्टॉक की बाकी चीज़ों ने जी। अभी चलना था थोड़ा बहुत ना। हम्म, अब टेंशन ये शुरू हो गई है। आज मैं देख रहा था कि कैबिनेट की मीटिंग की, जो नून लीग के जो मिनिस्टर थे उनके चेहरे लटके हुए थे, क्योंकि अब उनको नज़र आ रहा है, जैसे मैंने जिक्र किया ना कि ख्वाजा आसफ ने बयान दे दिया है कि भी अमेरिका उस हुकूमत को सपोर्ट करेगा जो न्यूक्लियर को सिस्टम को पाकिस्तान राइट। के को उसको डिसमेंटल करेगा, यानी तबाह करेगा। हम्म। तो इसका यही मतलब है कि इनके मामलात अब ट्रम्प इंतज़ामिया के साथ चलते हुए नज़र नहीं आते इनके साथ। थैंक यू सो मच सर। बुलाते हैं आपको दोबारा करंट अफेयर्स के लिए और दोबारा आपको तकलीफ देंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं दोबारा किसी ऐसे ही सेशन में। अल्लाह हाफ़िज़।